All right. Hi everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is good. So let's come back on the topic of today. Of course, whatever topic we discuss is exactly very important from an examination perspective. So today we are here with again one important topic which is exactly going to help you for phase 1, since the phase 1 of RBI grade B is all done, but the other phase 1 is still left, right? So maybe if you're the one who's preparing for SEBI, NABARD and other regulatory examination, there are actually high chance a question can be asked in GA, okay, specifically in NABARD. उसके साथ साथ if you're the one who's preparing, who's very confident about phase 1 of RBI grade B, and if you're the one who've started preparing for phase 2 also, there are high chances a question, this question can be asked, right? Because after doing proper analysis of previous year question, what we get to know कि जो schemes है उसमें से question जो है वो basically पूछे जाते हैं, है ना? और schemes जो major schemes कौन सी होती है, वही schemes जो कि न्यूज़ में रहती है ना. इफ़ यू आस्क मी कि मैम जन आरोग्य योजना जो है वो तो 2018 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 2018 के आसपास लॉन्च हुई, तो वाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली एग्जैक्टली ऑन 23rd of September it has completed its how many years? That is of course 7 years have been completed this year, right? तो यहाँ पे this entire scheme actually becomes the most important one. So यहाँ पे you just understand how it is important from the examination perspective. phase 2 में अगर question पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में दे गिव यू हिंट, ठीक है, दे गिव यू हिंट, दे राइट वन पैराग्राफ, दे गिव यू हिंट, या हो सकता है कि वो डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है. सो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप इट इज एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्टिव में इफ यू द वन हुज प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड एंड आरबीआई ईयर, तो नबार्ड में हो सकता है कि हेल्थ केयर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए. दे कैन आस्क यू अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, दे कैन आस्क यू अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑल्सो. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच आर एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फ्रॉम फेज 2 परस्पेक्टिव, एंड इन दैट यू नीड टू राइट दिस एज एन एग्जाम्पल देयर, ठीक है. अब इसमें हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, वाई इट इज इन न्यूज, right? Why it is in news? A kind of hint I've given you already, right? Basic information about it is exactly very important. Recent data about it is the most important one. Now when I talk about आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना, तो आप सभी को पता होगा कि जो जन आरोग्य योजना है, this is the first pillar of आयुष्मान भारत, right? आयुष्मान भारत बेसिकली है क्या? It's a kind of initiative only that has been taken to increase the health infrastructure, that has been taken to increase the penetration of health services in the rural areas, in the backward areas, and specifically for those individuals who cannot afford it. So this is one of the initiative taken for them only. It was also seen in the year of 2018 only. इसका जो पिलर्स हैं, वी आर हैविंग मोर पिलर्स, वी आर हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर हैविंग डिजिटल मिशन, वी आर हैविंग आरोग्य मंदिर्स ऑल्सो, बट जो फर्स्ट पिलर है वो क्या है? जन आरोग्य योजना. So exactly it becomes the most important one from my examination perspective. I've given you an idea also कि किस तरीके से जो question है वो पूछा जाएगा और किस तरीके से जो है आपको इसको as an example जो है वो वहाँ पे mention करना होगा, right? इसके साथ साथ क्या important है, they can ask you, if they ask you one question on objective, if they ask you objective type question for say, तो वो आपको eligibility के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो आपको exclusions के बारे में भी पूछ सकते हैं. So this is also very important, right? They can ask you about the date of launch also. So these are the static portion exactly which is actually very important from the examination perspective. उसके साथ साथ if you have made your notes of services sector which exactly includes healthcare, तो वहाँ पे आप इसको ज़रूर mention करना, because recently 7 years have been completed of Jan Arogya Yojana. That is the reason it is exactly very important. Before we initiate with it, this is the link of my Telegram channel which is Economy with Payal. So anyone here, if anyone here who wants to join the channel, the one can join it. Next, we are going to start with the data itself. Okay, this is the entire data on your screen. Now the information I've taken from PIB plus official site itself, but majorly from PIB only. Okay, PIB के explain section में you will get the entire report. Now this says कि यहाँ पे जो जन आरोग्य योजना है ना, ये क्या है? एक फर्स्ट पिलर है. It acts as a first pillar of whom? That is Ayushman Bharat initiative only. This is the first pillar.
which acts as one of the system which is specifically for facilitating or to to facilitate what that is the public healthcare infrastructure. अब ये किसके लिए responsible है? Penetration के लिए responsible है, as in I want health services exactly to be very universal in nature. Now when I say universal, it means everyone should have an access of it. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो मेन जो फोकस है व्हेन आई से यूनिवर्सलिटी, सो आई मीन दैट इट शुड रीच आउट टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, इट शुड रीच आउट टू बैकवर्ड क्लासेस, इट शुड रीच आउट टू रूरल एरियाज, इट शुड रीच आउट टू द एंड कस्टमर so that everyone can have benefit of this particular initiative. Next, what it says that even if I take into consideration other pillars of आयुष्मान भारत, चाहे मैं आरोग्य मंदिर्स की बात करूं, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे मैं डिजिटल मिशन की बात करूं, एवरीवन इज हैविंग मेन फोकस. यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है वो किस में होनी चाहिए? प्राइमरी सर्विसेज भी मेरे को प्रोवाइड करवानी है, सेकेंडरी सर्विसेज भी मेरे को प्रोवाइड करवानी है, एंड आई हैव टू प्रोवाइड देम टर्शरी सर्विसेज ऑल्सो. सो द कवरेज इज ऑल्सो वेरी हॉलिस्टिक इन नेचर एक्चुअली. तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर को इंश्योर करना, plus it provides services which are actually very universal, which are actually very comprehensive in nature. Primary, secondary and tertiary activities as in healthcare facilities are provided here. So that is the reason we are calling it world's largest public healthcare scheme that is aiming to provide them insurance only. अब यहाँ पे basically health है क्या? Health, when I talk about the healthcare services, what is it? It's a kind of social security only which is given to the individuals. अब यहाँ पे क्या करा जाता है? एक पैकेज या फिर आप बोल सकती हो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंडिविजुअल्स को दी जाती है, ऑफ कोर्स जो हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स है सिर्फ उन्हीं को दी जाती है. अब ये जो पूरा जो सिस्टम है या फिर ये जो पूरा कवरेज है दैट इज वर्थ व्हाट? दैट इज अप टू इक्वलेंट टू और मे बी लेस देन व्हाट? दैट इज 5 lakh, राइट? दैट इज 5 lakhs. दिस इज व्हाट इज द एंटायर अमाउंट हियर. नाउ बिफोर यू पीपल आस्क मी कि मैम एक इंडिविजुअल को मिलेगा एक फैमिली में या फिर एंटायर फैमिली को मिलेगा? सो इट इज एंटायर फैमिली. व्हाट इज द टाइम पीरियड? ऑफ कोर्स दैट इज एनुअल. तो एक हाउस होल्ड में अप टू 5 लाख जो कवरेज है वो प्रोवाइड करा जाएगा. अब ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस है. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की बात करूँ, सो रिसेंटली ऑन 23rd of September 2018 only it was launched, and if I try to relate it with 2025, of course 7 years have been completed. That is the reason it is in news. And again I'm telling you for sure a question will be asked in phase 2. ठीक है? So you people need not to miss it. इसको double या फिर you need to revise it maybe thrice or maybe 4 times also. अब ना दिस इंश्योर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है उसको इंश्योर करवाया जाए, जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंश्योर करवाया जाए फॉर व्हाट इज द टारगेट हियर? फॉर ओवर 12 crore of vulnerable families here, right? And this data says that as of October 2025 itself, more than 42 crore of Ayushman Bharat cards have been issued to all of the beneficiaries who are taking its, who are exactly taking its benefit. Now this includes senior citizens also. This clearly says that more than 86 lakh of senior citizens have been enrolled in the scheme, and it's a part of broader initiative that is Ayushman Bharat, which has ensure that affordable and accessibility of healthcare, affordability as well as accessibility of healthcare services is exactly ensured. अब इसके साथ साथ क्या होगा कि जो मेरा ब्रॉडर टारगेट है वो मेरे को अचीव करने में हेल्प करेगा, जैसे सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत बाय 2047. सो आई विल बी एबल टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. नाउ वन मेन पॉइंट, मैंने आपको बहुत बार बोला था कि ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, अब ये बेसिकली क्या करती है? ये जितने भी हमारे हेल्थ केयर की चैलेंजेस है ना उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. जो हमारा हेल्थ केयर है उसकी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने की बात करती है. ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इट टॉक्स अबाउट दैट. सो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज पार्ट ऑफ इट. सो जस्ट कंसीडर कि ये जो हमारी पॉलिसी है ना ये एक एंटायर फ्रेमवर्क है विच डिसाइड्स दैट हेल्थ केयर इज गोइंग इन विच डायरेक्शन. एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई से आयुष्मान भारत ना, it's a मेजर part of it actually.
आयुष्मान भारत क्या है, इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट. एंड फर्दर वी आर हैविंग further pillars of Ayushman Bharat. The first pillar is of course Jan Arogya Yojana only. So you have to just consider the entire chain. अगर आपको फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो मतलब आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट रहेगा if you are not mentioning about this policy 2017 here, right? So you need to mention that. Now you people know about it. It was launched in the year of 2018 and we are celebrating 7 years of its formation here. All right, so this talks about the other pillars of Ayushman Bharat. I told you this is the first one, that is Arogya Yojana. So Jan Arogya Yojana is the first pillar. बाकी क्या है, जन आरोग्य मंदिर्स है. अब मंदिर्स हम बेसिकली क्या करते हैं, मंदिर्स यूजुअली how you will be able to remember it for say. Now this is going to be a little funny to take into consideration, but yes, you people will remember it exactly. अब हमारा जो मेन मोटिव है जन आरोग्य योजना का, आयुष्मान भारत योजना का, वो पेनिट्रेशन है ना. आई हैव टू इंश्योर कि ये हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच रहा है, ये हर एक इसको एंड कंज्यूमर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. नाउ इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन मंदिर्स ओनली, ठीक है, मंदिर्स भी हर एक जगह पे मिल जाते हैं ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या टारगेट करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर को टारगेट करना है, विच इज एग्जैक्टली द फर्स्ट स्टेज ऑफ हेल्थ केयर. तो यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर को और ज़्यादा एडवांस करना. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करना, अवेलेबल करवाना, प्राइमरी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या बनाना, एक्सेसिबल बनाना. सो दीज आर द टारगेट्स विच आई हैव टू एग्जैक्टली अचीव. अगर एक्सेसिबल होगा तो ऑफ कोर्स जो एंड कंज्यूमर है वहां तक आराम से जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाएगा. नेक्स्ट सेज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ना डिजिटल इंटीग्रेशन कंप्लीटली सेज कि यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, कि यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि जो डिजिटल डिजिटल मीन्स है उससे लिंक करना हर एक हेल्थ फैसिलिटी को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिक आईडी जो है वो जनरेट कर दे किसी भी पेशेंट की, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प फॉर इंटीग्रेटिंग द एंटायर डेटा विद द बिग हॉस्पिटल्स, ताकि वो अगर प्राइमरी से उठ के सेकेंडरी में भी जा रहा है, फिर अगर वो टर्शरी हेल्थ केयर के लिए भी जा रहा है, तो उसको जो यहाँ पे जितने भी उसकी रिपोर्ट्स है, जितना भी उसको डेटा है, उसको बार बार डिस्कस ना करना पड़े. हम क्या करेंगे, उसकी यूनिक आईडी बनाएंगे, उसमें ही सारा जो डेटा है उसको कैप्चर करेंगे, एंड इट विल बी एग्जैक्टली हेल्पफुल फॉर द एंटायर इंटीग्रेशन अमंग दीज 3 स्टेजेस. सो फ्रॉम विलेज क्लिनिक्स टू बिग हॉस्पिटल्स एंटायर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट, जिसके बेसिस पे जो जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे पेशेंट की आइडेंटिटी है, या फिर जो पेशेंट का जो हिस्ट्री है उसको बार बार रिपीट करने में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा. इट इज गोइंग टू हेल्प द बिग हॉस्पिटल्स ऑल्सो एज इन डॉक्टर्स एज वेल टू फैसिलिटेट द एंटायर थिंग. नेक्स्ट इज पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. इंफ्रास्ट्रक्चर से एवरीवन नोज अबाउट इट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2021. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी है, चाहे वो टर्शरी है, मेरे को क्या करना है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अकेला फिजिकली ही नहीं है, मतलब इट डजंट मीन दैट इफ यू हैव मेड गुड क्लिनिक्स दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली. यस, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट डिजिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो इट मीन्स यहाँ पे जो डिजिटल मिशन है इसको कौन फैसिलिटेट करेगा, ऑफ कोर्स आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर का एकदम क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको इंश्योर करेगा. ठीक है, दिस इज अबाउट द एंटायर हेल्थ केयर इट हैज टू इंश्योर, which includes primary, which includes secondary, and tertiary is also one of the important parts of it. Now, if you take into consideration this primary care, this is just the basic medical health care only. It includes the preventive services, treatment for common illnesses also part of it, which includes what? The facilities that are provided here include sub-health centers, primary health centers, community health centers are part of it. Next is secondary health care, जहाँ पे जो रेफरल है वो बेसिकली प्राइमरी केयर से हम कहाँ पे दे देते हैं, सेकेंडरी केयर में दे देते हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारे हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए. ठीक है, ना दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड हियर. देन इट goes on to whom, that is tertiary health care only, which includes medical colleges, state level institutions as well. And believe me, when I say Jan Arogya Yojana, it has to take care proper integration among these 3 stages here, right? So that is the reason it's a complete pyramid that has been made. ये क्या है, ये basic services provide करता है, उसके बाद यहाँ से जो referral है वो secondary में दिया जाता है, and tertiary healthcare services provide the patient advanced kind of services as well. ठीक है, जहाँ पे special equipments होंगे, अलग अलग
वेराइटीज़ होंगी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होंगे. यहाँ पे जो है एक सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है कि अच्छा, इफ़ यू हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट एट ऑल एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन आई एम प्रेफरिंग towards the secondary care and then towards the tertiary care also. So it is exactly followed here, and a pyramid is kind of made, right? Next it talks about what that is the information about this particular thing only. I've already told you. अच्छा, अब ये जो 5 लाख पर ईयर 5 लाख पर ईयर का जो इंश्योरेंस दिया जाता है ना, यहाँ पे द वन कैन वुड बी लाइक एज इन आई एम जनरली सेइंग दैट फैमिली विल बी एबल टू use it as a kind of cashless treatment only, which is empaneled in both government funded as well as private hospitals also. So अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, so remember कि government funded भी है और private hospitals में भी you will be able to access it. Next it includes what it exactly covers. जो हमें जो इंश्योरेंस मिलेगा उसमें क्या क्या कवरेज होगी. So this includes medical examination, pre-hospitalization of 3 days, surgery procedures, medicine and consumables, diagnostic and lab tests. Remember pre-hospitalization भी available है 3 days की, ठीक है. अगर वो 5 days लिख लेंगे, so that is not at all correct. So people need to remember that. ICU charges part of it. Post-hospitalization is also there for 15 days, ठीक है. जो 3 है वो क्या है, that is pre. पोस्ट के कितने हैं, पोस्ट के हैं 15 डेज, ठीक है. सो रिमेंबर दिस. नो फैमिली साइज लिमिट है, बट ये जो है वो इंश्योर करा गया है कि इफ यू आर एलिजिबल ऑफ कोर्स यू विल बी गिवन बेनिफिट हियर. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर देयर एंड बेनिफिट पोर्टल नेशन वाइड इज आल्सो मेड एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स एज इन कैंडिडेट्स, ठीक है. नाउ दिस टॉक्स अबाउट द प्रोग्रेस आल्सो. अब हो सकता है कि आपको प्रोग्रेस से या तो जीए में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है कि प्रोग्रेस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो फेज 2 में पूछ लिया जाए. सो इट सेज दैट इट हैज saved, like since its launch, as in since 2018, it has saved 1.52 lakh of rupees, crores in out-of-pocket healthcare expenses, according to the latest economic survey of India. Remember the data here, that is 1.52 lakh crores. Okay, you can mention it in the answer if it is asked, right? As of October 1st of 2025, PMJ has over 42 crore of people enrolled, according to Ayushman Bharat cards, created the scheme's beneficiaries. More than 86.51 lakh of senior citizens over 70 years have been provided Ayushman Bharat Vyaya Vandana cards, and over 33,000 of hospitals across the country, 17,685 public and 15,318 private are empaneled here. Okay, and lakhs of individuals are the one who have enrolled themselves in this particular scheme also. So this entire data is exactly very important. अब ये क्या है, स्पेशलिटी है, जो स्पेशलिटी के नेम्स है. Of course this includes general medicine, ophthalmology is part of it, of course medical oncology is part of it, obstetric and this gynecology is part of it, general surgery, orthopedics is part of it, urology है, emergency room है, cardiology है, neonatal services are also part of it, ठीक है. This is the entire data which has been written here. अब यहाँ पे जो अमाउंट है, रुपीज़ का अमाउंट है, टोटल काउंट है, ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जनरली नहीं पूछा जाएगा. अब यहाँ पे अगर मैं बजट की बात करूँ, सो ऑफ कोर्स बजट इज गेटिंग इंक्रीज्ड एवरी ईयर, राइट. इफ यू आर एबल टू सी 1920 का, दिस यूज्ड टू बी 6,556 ओनली, दैट इज करोड़, एंड 2021 में वी सॉ कि थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, 6,429 वाज देयर. फिर उसके बाद 6,401, 7,857, 7,200, 7,500, and finally in 2025-26 the allocation of budget, the extra allocation of budget has reached to 9,406. So this is something which is exactly important from an examination perspective, और ये भी important है, ठीक है. So ये दोनों को you people need to remember it. All right, now let's come on to the eligibility criteria. अगर हमें इस particular scheme के benefits को लेना है, तो what I need, like what is exactly the benefit, no, what is exactly the eligibility criteria, मेरे को क्या conditions fulfill करनी पड़ेंगी तभी मैं इसके अंदर आऊँगी. तो अच्छा, now the purpose is all known by everyone here. अब यहाँ पे रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के हिसाब से जो बाइफिकेशन दैट हैज बीन मेड, विच इंक्लूड्स D1, D2, D3, D4 एंड D5, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स D6 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. अब यहाँ पे D1 क्या इंश्योर करता है कि पीपल हु आर लिविंग इन वन रूम विद कच्चा वॉल्स एंड कच्चा रूफ
will be given this particular access. Family who's having no adult member who is aged between 16 से लेके 59, उसको ये जो particular benefit है जो वो मिलेगा. Family who's having no male member of age between 16 से लेके 59 तक, वो D3 की कैटेगरी में आएगा और उसी को जो है वो अलाउ करा जाएगा फ्री एंड कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए. Family has disabled member or disabled adult member that comes in the D4 one. Scheduled caste, scheduled tribe families are the one, and landless families who are engaged in labor work is also the one. So these D6 categories are exactly the most important one. क्या क्या हमने देखा, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक रूम में रह रहा है, कच्चा वॉल्स है, कच्चा रूफ है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा. कोई भी इंडिविजुअल के घर में अगर कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है, उसकी भी एज स्पेसिफाइड है, दैट इज 16 to 59 ईयर्स, उसको बेनिफिट मिलेगा. किसी भी घर में अगर कोई मेल मेंबर नहीं है, तब भी जो बेनिफिट है उसको मिलेगा. डिसेबल्ड मेंबर है, तब भी बेनिफिट मिलेगा. स्केड्यूल्ड कास्ट हो गए, SCs हो गए, उनको बेनिफिट मिलेगा. और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी लैंडलेस फैमिलीज है और जो कि लेबर के काम में एनरोल्ड है, उनको भी जो बेनिफिट है वो मिलेगा. नाउ लेट्स कम ऑन टू द अर्बन एरियाज. सो यहाँ पे 11 कैटेगरीज के अंदर ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक वर्कर्स, बेगर्स, रैग पिकर्स, स्वीपर्स जिनको हम यूजुअली माली भी बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर हो गया, कॉबलर हो गया, हॉकर हो गया, उनको भी बेनिफिट मिलेगा. ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो गए, उनको भी काम मिलेगा, मतलब उनको भी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मिलेगा. होम बेस्ड वर्कर हो गए, आर्टिसंस हो गए, हैंडीक्राफ्ट वर्कर हो गए, टेलर्स हो गए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, प्लम्बर हो गया, मेसन हो गया, लेबरर हो गया, दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट हियर. वॉशरमैन, चौकीदार, बेनिफिट मिलेगा. इलेक्ट्रीशियन हो गए, शॉप वर्कर हो गए, पियन हो गए, किसी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में लगे हैं, पियंस हो गए, ठीक है, डिलीवरी पर्सन हो गए, दे आर गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट. नाउ दिस इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर इट. जहाँ पे किसी भी फैमिली के पास, उनके पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है रहने को, तो उनको बेनिफिट मिलेगा. ऑफकोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट्स है उनको बेनिफिट मिलेगा. मैनुअल स्कैवेंजर्स है, दे विल गेट दिस बेनिफिट. प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है, उनको बेनिफिट मिलेगा. एंड बॉन्डेड लेबर्स, दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट है, राइट. अदर एलिजिबल बेनिफिशरीज में कौन आएगा? जो भी हमारे इंडिविजुअल्स जिनके पास भी राशन कार्ड्स है, ठीक है, राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज है, उनको बेनिफिट मिलेगा. एंड फैमिलीज हु आर लिस्टेड इन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है. All right, so these are the basic things which you people need to remember. अच्छा, अब आरोग्य मंदिर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर है. It is all related with primary health care services only. I've already told you in a very very detailed manner about it. Okay. ठीक है. Now this includes primary and sub health care centers which are exactly equipped with all of the required resources, which includes upgraded infrastructure, human resource, essential drugs हो गया, IT system हो गया, ठीक है. Now this includes the recent number as of consultation, teleconsultation here. Digitalization is part of it. अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि हमारे पास 3 stages हैं, ठीक है, 3 stages है. प्राइमरी है, सेकेंडरी है और हमारे पास टर्शरी भी है. इन तीनों की प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए आई एम हैविंग दिस डिजिटल सिस्टम विच इज एग्जैक्टली गोइंग टू हेल्प देम. सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है. नेक्स्ट इट इंक्लूड्स वो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. प्रीवियसली क्या था? डिजिटल था. दिस इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. अब इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में कुछ भी नहीं है, प्राइमरी से लेके टर्शरी तक, राइट, इंक्लूडिंग दीज 3 सर्विसेज. आई हैव टू इंश्योर कि हर एक सर्विसेज में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली इंश्योर करा जाए, ठीक है. सो दिस इंक्लूड्स नथिंग बट दिस सेज द मेन गोल इज टू फिक्स द क्रिटिकल गैप्स इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजीज मॉनिटरिंग, हेल्थ रिसर्च अक्रॉस बोथ सिटीज एज वेल एज विलेजेस ऑल्सो, सो दैट वी कैन हैंडल फ्यूचर पैंडेमिक्स. So we can get ready for that also. Now this includes by numbers. अगर आपको पुरानी जो स्लाइड्स है वो रीड नहीं करनी है, अगर आप ये भी कवरेज करोगे ना, so the your entire purpose will be done. इसका मेन पर्पस क्या है? 5 लाख जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देता है, कैशलेस ट्रीटमेंट देता है. अगर मैं बेनिफिशरीज की कवरेज की बात करूँ, सो एज ऑफ नाउ 60 करोड़ हैव बीन डन. ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, आरोग्य मंदिर के ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, दिस इंक्लूड्स 1,79,705. टेली कंसल्टेशन 39.61 करोड़. आभा आइडियाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, 79.91 करोड़ इज एग्जैक्टली द नंबर. व्हेन आई टॉक अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर कवर्ड हियर, so that is 1961. So when I talk about the sessions here, that is 6.20 crore, and Ayushman Bharat cards which have been created under it, that includes 42 crore. So that is the entire information about this Jan Arogya
Yojana. So I hope the entire information is useful for all of you and I know that you've taken a lot of insight from it. हमने क्या क्या cover करा इसमें? सबसे पहले we covered that what is like why it is in news, right? Next we covered that how it is exactly helpful from the examination perspective. Whatever I've written here is with the proper filtration. So ऐसा नहीं है कि मैंने full fledged जो information है I've written it down. No, whatever like based on the previous year trends only, whatever like there are mostly chances हो सकता है कि आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाए. So मैंने वही ही जो डेटा है वो कंपाइल करा है जिसमें से चांसेस है कि आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. So this entire data is exactly the most important one, and if you just go through the entire data you need not to cover any other data also. हाँ, डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए आप कहीं कहीं से जो डेटा है वो कंपाइल कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल ऑफ द पर्पस इज ऑल डन, राइट? सो आई होप दिस इज very useful for all of you. Having any doubt, you can just pin that in the comment section. Of course, I'll address that. Thank you so much. Take care.